अभी 3 बार हम सभी प्रिंसिपल्स और टीचर से गूगल मीट पर मिले, बातचीत भी की, एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव सेशन भी चला और आइडियाज़ का भी एक्सचेंज हुआ। हम सभी जानते हैं कि एक समस्या हमारी बड़ी कॉमन है, वह है कि ऑनलाइन पठन पाठन में हमारे सभी बच्चों के पास न तो स्मार्टफ़ोन है, न ही टीवी की सुविधा है और न ही कंप्यूटर है या अन्य कोई भी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कह सकते हैं उपलब्ध है। जो ज़्यादातर बच्चों के पास इन संसाधनों का अभाव है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में यह देखने में आया है कि ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल्स नहीं देते। अगर उनके पास मोबाइल भी हैं तब भी वे ज़्यादा समय तक अपने पास रखते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हमें लोग को विकल्प ढूंढना है। वी कैन से जब हमने एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, हम ही को सॉल्यूशन पाना है। एक आइडिया जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी, इस वीडियो के माध्यम से सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि अभी संचारी रोग नियंत्रण के समय हमारे डीएम साहब ने एक काम दिया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी गांव जाएंगे और वे देखेंगे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि वे बच्चे जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि जिस गांव में मैं गया था वहाँ केवल 2 ही टीवी सेट थे और ज़्यादातर लोगों के पास जो है साधारण फ़ोन थे। तो एक राम जी के बारे में हमने मोटी मोटी बात लिखी और उनको चस्पा कर दिया और प्रधान जी से कहा कि ये इसलिए बनाया गया है कि वे बच्चे जिनके पास कोई भी संसाधन नहीं है, अगर पढ़ेंगे तो एक जिज्ञासा पैदा होगी। आप कोशिश ये करें कि ना आवश्यक रूप से कोई फाड़ न दे और 2-4 जो इम्पोर्टेंट आदमी हैं जिनके बारे में खासकर वे टीचर्स जानकारी दे सकते हैं, जो उस एरिया के रहने वाले हैं, तो उनका सहयोग लेकर हम आइडिया को और किसी विषय वस्तु के कंटेंट को सरलतम भाषा में मेन पॉइंट्स को दे सकते हैं, जिससे बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा हो और वह चीज़ों को जानने का प्रयास करे। इसके पीछे एक मोटो है, थोड़ा अंग्रेज़ी में कहना चाहेंगे कि सपोज़ whenever a new idea comes to us, it goes directly to our subconscious mind and it remains there inactive for a longer period of time. By the way, when things related to that ideas are brought before us, we take a lot of interest. Suddenly we become curious and we want to know about it because we have heard something about that idea. So that idea which was in inactive form in the subconscious mind suddenly jumps into the conscious mind, and when a lot of information is given on this, not only we take a lot of interest and we become curious to know, but it gets into our brain for a longer period of the time. In other words, we can say that the power of retention is increased there. In the same way, if we want to give something to our children, the most important weapon is through the note making. Note that too in simple words. You might have heard the name of Lala Hardyal. He has the credit of getting 97% of marks in English. This is a world record and is not broken till date. It is said about him, whatever he heard or whatever discussions he heard secretly too, everything was imprinted in his mind, and his mind was termed at that time as tape recorder. So he has written, even if you want to remember things for a longer period of the time, and if you want to avoid the revision of all whole content, it is important that things must come to our brain through notes. So we can make the most of this thing. If the ideas are brought before the child, he will be curious, he will try to know about him, and through the influential person or the consciousness created on a larger scale, we can give this thing easily to those children who are deprived of
any technological support. This is the one point. Second point is related to this factor कि things which the child already know. As we see in the classroom teaching, real life like situation is to be created by a teacher in the class so that the child may understand the things very easily, he may comprehend the things very easily. So there we see what he learns from the society, what he sees from the society. For example, in Ayodhya, particularly, though recently the Ram Mandir was a matter of hot debate, discussion, and child we can understand knows about it. And there is a chapter on Ram in ethical books in class 6th or 7th. We can give some idea over Ram, we can write about his life history, the teachings, etc., and we can paste these things on the street in the village. The child, because he knows something about Ram before, definitely if we want to add some in more information, the child will grasp the things very easily. So depending upon these two things, I think we can also engulf or we can take these children into our fold, and easily we can prove very helpful to the department for imparting the education to each and every children despite all these difficulties और created by this COVID-19. तो इस तरह से हम अगर देखते हैं तो हम बच्चे को जो देना चाहते हैं बड़े आसानी से हम लोग दे देंगे, सूचनाएं दे देंगे और हम अपने उद्देश्य में भी सफल होंगे. यहाँ यह बात ध्यान में रखनी है कि भाई प्रिंसिपल्स को हम लोग से जोड़ना है, प्रिंसिपल को टीचर्स से भी जोड़ना है और उनको हर टीचर को प्रिंसिपल को भी बच्चों से ही बात करना है. तो निश्चित रूप से हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रतिकूल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कोर्स भी कम कर दिया है. तो वे चैप्टर्स जो खासकर बड़े इजी हैं और हम समझते हैं कि चाइल्ड कुछ न कुछ इस बारे में जानता है, नोट मेकिंग का सहारा लेकर हम इस पर जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी. क्योंकि एक गांव में मैंने किया है, मैंने लेवल ऑफ क्यूरियसिटी और जानने की जो इच्छा होती है वह कैच की और पाया कि इट इज़ ए सक्सेस. तो हम लोग इस पर और काम करें. हो सकता है कि हमारे सभी बच्चे जो वंचित हैं पठन पाठन से वे जुड़ जाएं. दूसरा, हमें शिक्षणेतर जो एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हम हर मंडे को कुछ न कुछ उनको देते हैं और सैटरडे तक एक्सपेक्ट करते हैं. तो ये प्रिंसिपल्स की ही ड्यूटी है, टीचर्स की ड्यूटी है कि हर बच्चे को इनसे जोड़ा जाए. क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल बोथ स्टेप्स के माध्यम से ही बच्चे को इफ़ेक्टिव एजुकेशन प्रदत्त की जाती है. जहाँ तक डिफ़िकल्ट चैप्टर्स का सवाल है, डेफिनेटली वी कैन वेट फॉर सम टाइम्स, और आपके पास कोई और इनोवेटिव प्लान हो आप उसको दें तो इजी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस संबंध पर हम लोग कुछ प्रयास करें. आई होप दैट वी शैल बी सक्सेसफुल एट एवरी कॉस्ट. Only thing is this, that we have to come out in the field with a view, with a lot of confidence that we have to solve all these difficulties, these problems in an easy way. Thanks.